Good evening, everyone. Hi. Hope you guys can see me and hear me clearly. Give me a thumbs up if you guys are able to see me and hear me. Hi, Karishma. Hi, Jyoti. Hello, Abhinav. In this particular class, we are going to discuss the CAT 2020 paper, slot 3, part 2. Actually, इस CAT 2020 में slot 3 में 5 सेट आए थे. 5 में से 3 सेट्स मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं जो कि आज हुआ था 3:30 पे. द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट शुड बी अवेलेबल एंड द रिमेनिंग 2 sets I will be discussing now, just after the brief introduction. For those of you who might be joining my class for the first time, my name is Ravi Handa. I started my career with IMS around 15 years ago, just after I got out of college in 2006. Since then, I've taught at Time, Career Launcher, all the leading CAT coaching institutes. And after that, I started my own website with the name handakafunda.com, through which I taught 20,000 plus students online. Recently, my website was acquired by Unacademy, and since then, I have been taking classes and courses for Unacademy. Now, as a part of Unacademy, there are 2 kinds of courses which are available. One is the Plus courses. Now, what happens in the Plus courses is you get live classes, bilkul easy type, very similar to this one, but you get them in a structure. That is, on day 1 itself, you will know कि अगले फ्राइडे को कौन से टॉपिक की क्लास होने वाली है, अगले सैटरडे को कौन सी क्लास है, क्या मेरा ऑर्डर रहेगा, क्या मेरा शेड्यूल रहेगा, कब कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा, कितनी लंबी क्लास होगी, सारी डिटेल्स आपको पहले से ही मिल जाएंगी. Also, suppose you miss a particular class, you can watch the recording of it. और let's say if you miss a bunch of classes, हफ्ते भर के लिए आपको कहीं जाना पड़ गया और हफ्ते भर की सारी आपकी क्लासेस मिस हो गई, then because you have unlimited access, you can just go ahead and join another batch. At one point of time, there are, I don't know, 40-50 कैट के टीचर्स हैं जिनमें से एक मैं हूं, और सब लोग क्लासेस लेते रहते हैं, कभी ये टॉपिक पे, कभी वो टॉपिक पे. तो आपको हमेशा whatever topic you want, whatever level of preparation you are at, you will get some batch or the other which will satisfy your needs. Over and above that, if you need personal guidance, in that case, I would recommend the Iconic plan. इसमें आपको वो सब तो मिलता ही है जो कि आपको प्लस प्रोग्राम्स के अंदर मिलता है, but along with that, you get one-on-one attention as well. There is a live mentoring program जिसमें आप मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो, and these mentors are people who have not only taken the exam before but have cracked the exam as well. So these are people who have graduated from the top IIMs, and they'll be there to help you and guide you, provide personalized guidance so that you can improve your performance. My recommendation, if you're looking at CAT 22, then you should go in for the 12-month plan, which is for 39,500. इस पे डिस्काउंट चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा. और अगर आप CAT 21 के लिए कर रहे हैं, then the 6-month plan should be enough. So there are multiple offers which are running. I think 22nd तो आज ही है. हाँ, तो ये अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो आपको 6 months के साथ 1 month फ्री, 18 months के साथ 2 months फ्री, एंड 24 months के साथ 4 months फ्री आपको दिए जाएंगे. एंड वी हैव अनदर ऑफर. भाई, एक तो आपको हांडा कूपन कोड यूज करने से 10% डिस्काउंट मिलेगा. दूसरा, कंपनी ने ही एक बाय डिफॉल्ट 10% डिस्काउंट अभी चला रखा है इस हफ्ते के लिए. So in case you are planning to register for any of the courses, this week is absolutely the right time. You can use the coupon code HANDA, get a 10% off. Overall, there is another 10% off which is also running. You can try that as well. So what will happen is कि जैसे कि मैं CAT 22 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो CAT 22 के लिए जो प्रोग्राम है, that after applying the company discount and the HANDA coupon code, you'll get it only for roughly 32K. And that sounds like a pretty sweet deal. So, with that being said, if you guys are ready, we can start off with the questions. Give me a thumbs up. और या आपको अगर अपनी preparation के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. I'll be happy to answer your queries. If not, then I will go ahead and try and answer the questions.
Okay, I don't see anything coming in. चलिए शुरू करते हैं. हम लोगों को ये सेट गिवन है. A survey of 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning process. The following 4 facilities were studies. ये 4 चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया. And this is the information that they found out. 9 conditions है और उसके बाद में questions है. I like these kind of questions. हर एक question के अंदर specific information है. 2 तो टीटाई हैं, यानी कि जो भी मेरी टेबल बनेगी, जो भी मेरा डेटा बनेगा, वो परफेक्टली कंक्लूसिव, एकदम एक्यूरेट डेटा बनेगा. तो 600 स्कूल है मेरे टोटल. आई कीप दैट इन माइंड. क्या कंडीशंस हैं? 80 schools did not have any of the 4 facilities. दैट मीन्स जो 4 फैसिलिटीज हैं उसमें जो भी लोग हैं उनका टोटल 520 है. 40 एट ऑल 4. तो अब मुझे इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा. एंड दिस वेन डायग्राम इज गोइंग टू बी अ वेन डायग्राम ऑफ 4 सेट्स. So this is roughly, अच्छा नहीं बना, मैं थोड़ा सा और स्पेस लेके बनाता हूं. Yeah, this is better. ये हैं मेरे F1, F2, F3 और F4 का डेटा. अब मुझे गिवन है 40 schools had all 4 facilities. तो ये वाला पोर्शन में 40 आ जाएंगे क्योंकि यहां पे मेरे सारे के सारे, मतलब दिस इज द पार्ट जिसमें F1 भी है, F2 भी है, F3 भी है, F4 भी है. All 4 of them are present here. फिर number of schools with only F1, only F2, only F3 and only F4 was 25, 30, 26, 20. Okay. Only F1 is 25. Only F2 is 30. Only F3 is 26. Only F4 is 20. ठीक है. और वैल्यूज भर गई. धीरे धीरे करके उम्मीद करता हूं ये पूरा भर जाएगा. तो फिर हम लोग इसको आंसर कर देंगे. नंबर ऑफ स्कूल विद एग्जैक्टली 3 फैसिलिटीज वाज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ विच 3 वाज कंसिडर्ड. ओके, तो इस पे बाद में आएंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई कितने थे. 313 एट F2. F2 में 313. 26 had only F2 and F3 but not F1 or F4. F2 and F3 is 26 क्योंकि इस वाले पोर्शन में सिर्फ F2 F3 है, ये F4 के अंदर नहीं है और F1 के भी अंदर नहीं है. Among schools having F4, 24 had only F3. यानी कि F3 F4 में होंगे 24 लोग. F3 F4 ये वाले पार्ट में है 24 लोग. 45 had only F2. तो F2 F4 में है 45. F2 और F4 यानी कि ये वाले पार्ट में है 45. ओके. 162 had both F1 and F2. So this particular row was 162. Number of schools having F1 was the same as F4. F1 का जो भी टोटल था और F4 का जो भी टोटल था वो सेम है. अब कैन यू टेल मी विच वैल्यू कैन यू फाइंड आउट? विच वैल्यू कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम हियर? तो देखो, F2 का टोटल है 313, इसका टोटल है 162. So if someone asks you for this particular value, वो आप निकाल सकते हो. कैसे?
F2 का टोटल है 313, उसमें से इस रो का, नीचे वाली रो का 162 निकाल दीजिए एंड टॉप रो का 30, 26 एंड 45 निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा? जो भी बचेगा that will be my answer here. So if any of you has calculated it, you can give it to me. If you have not calculated it, then I will use a calculator and find it out. 313 minus 162 minus 30 minus 26 minus 45, ये आ गया मेरा 50. ओके, अब ये अगर 50 आ गया तो मैंने कौन सी कंडीशन यूज नहीं की थी? ये वाली. नंबर ऑफ स्कूल्स विद एग्जैक्टली 3 फैसिलिटीज इज द सेम. तो अगर ये 50 आ गया तो एग्जैक्टली 3 वाली है, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा. अब जब मेरे ये सब 50 50 50 50 निकल गए तो आई कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. इस रो का पूरा टोटल जो है वो मुझे गिवन है 162. तो अगर ये पूरी रो ही मुझे गिवन है 162, तो अब इस रो में से मैं इन वैल्यूज को निकाल सकता हूं. 50, 40 एंड 50. तो 162 में से 140 निकल गया तो बचा 22. अब मेरी क्या वैल्यूज रह गई हैं? अब मेरी वैल्यूज रह गई हैं these two, x and y. So let me use that. I'm given the information f1 is equal to f4. f1 कितना है? f1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 50, 50, 50, 150, 150, 25 and 22, 47 and 87, 150 plus 87 plus x plus y. So this particular value that we are looking for f1 is 237 plus x plus y. Very similarly, if I try and calculate f4, तो उसमें भी 150 तो यही हो गया. 150 के अलावा कितना है? 150 के अलावा है 24 and 20, 44, 44 and 45 is 89, 89 and 40 is 129. 129 plus 150 is 279. Plus y. Y and y cancels. So I get the value of x as 279 minus 237, which comes out as 42. So ये मेरी x की वैल्यू आ गई. अब जब मेरी x की वैल्यू आ गई, खाली y की वैल्यू बची है. y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, so then what I can do is I can apply the idea कि मेरा टोटल कितना है. Total minus all values which we already know is y. Total is 520. 520 में से मैं f2 का 313 निकाल दूं. ये ऊपर वाली टॉप रो का 26, 24 and 20, 50 and 20, 70, और ये बॉटम रो का 25 and 42 is 67, 67 and 50 is 117. कितना आ जाएगा? 520 minus 313 minus 70 minus 117, तो मेरे y की वैल्यू आ गई 20. So this way, what I've done is I've used all the conditions which were given to me, and based upon all of these conditions, I have found out the value that I was looking for. I hope you guys are okay with these values that I have found out for x. अच्छा, f1, f3 इन सब के टोटल रह गए,
तो F1 का टोटल कितना होगा? F1 का टोटल था कितना? F4 का टोटल है 279 प्लस y मैंने निकाल लिया है 20, तो F4 का टोटल हो गया 299, तो F1 का भी टोटल हो गया 299। किसका रह गया? F3 का रह गया। तो F3 का देख लेते हैं भाई। 50 50 50, 26 और 24 ये भी 50, तो 200 तो यही हो गए। फिर 42 40 एंड 26, तो 40 40 और 20 अगर मैं करता हूं तो 100 वो हो गया, सो 300 हो गया। 6 एंड 2 बचा, तो 300 308 is the value which comes out for F3। अब एक बार जब मैंने F1 F2 F3 F4 चारों की वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं, इंडिविजुअली सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं, तो अब मुझे इस क्वेश्चन में और कुछ करने को रह ही नहीं गया है। So now what I'm going to do in this particular question is I'm just going to try and solve the questions. What is the total number of schools having exactly 3 of the 4 facilities? 50 50 50 50, it is 200. Number of schools having F2 and F4, तो F2 और F4 के अंदर कॉमन चाहिए। F2 and F4 में ये चारों कॉमन है, that is 50 plus 45 plus 40 plus 50. So this was 50 into 4, 50 45 40, so this comes out as 185. Number of schools having only F1 and F3, only F1 and F3, that is the value of X that we have found out, which had come out as 42. Number having F1 and F4, which is this particular value, which we had found out as 20. And these will be all the values that we were looking for. I hope you guys are okay with this particular set of values. Let us now go ahead to part 2. So this was the first set. As you can see, I'll definitely, अगर आपको ये 4 सेट का वेन डायग्राम बनाना आता है, then I will put this particular set in the easy category, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैंने सारी वैल्यूज निकाली और फिर उन सारी वैल्यूज को पुट करके मैं अपना आंसर निकालता चला गया. So there isn't much that was required in this question. And so we are launching multiple batches today. I would especially like to recommend the batch that we are starting for CAT 22. If you're planning to prepare for CAT 22, now is the correct time to do it. Also, I'm taking a special class at 7 p.m. today, which will deal with GK. I would invite you guys to attend that. That's bound to be entertaining and helps you, get in touch with what is happening in the world of GK. These are some of the other classes that I have planned. आज ये दोनों क्लासेस तो मैंने ले ली, पार्ट 1 पार्ट 2 अभी हमारा चल रहा है. जीके की क्लास है शाम को 7 बजे, और कल दिन में हम लोग एक मस्ट डू LRDI एपिसोड और करेंगे, जिससे कि आपको LRDI के अंदर यू विल गेट ऑब्वियसली मोर हेल्प, सो टू से, विद LRDI प्रिपरेशन. And let us go ahead. Let us try out the next set. Just go through this set, read this set. Tell me if you want, if you understand how the game is being played. If you understand it, well and good. If you don't understand it, then I'll obviously explain it to you. Hi Shivam, hi Priyanshi, welcome to the class. We are discussing LRDI sets which were asked in CAT 2020 paper. Should I explain this data or information? Please let me know if you're okay with this. If not,
So I'll try. The high-low game is a 4-player game. Okay, it is played in 6 rounds. In every round, each member chooses to bid high or low. The bids are made simultaneously. If all 4 bid high, then all 4 lose 1 point each. Okay. So if there are 4 players and all 4 of them bid high, then all of them will get a -1, -1, -1, -1, or they will have a total of -4. Okay. If 3 players bid high and 1 bids low, then the player bidding high gain 1 point and the player bidding low loses 3 points. तो अगर 3 लोगों ने हाई बोला और एक ने लो बोला तो -1, सॉरी, तो 3 लोगों को जिन्होंने हाई बोला है उनको तो +1 +1 +1 मिलेगा, बट तीसरे बेचारे की वाट लग जाएगी, उसको मिलेगा -3. तो नेट स्कोर, भाई जो भी पूरा सबका स्कोर था मिला के, नेट चेंज इसमें 0 रहेगा. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. नॉट ओनली कि इंडिविजुअल स्कोर्स को क्या हो रहा है, टोटल स्कोर को क्या हो रहा है, वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा. ठीक है जी, दूसरा केस हो गया. तीसरा केस, 2 लोग हाई बिड करते हैं और 2 लोग लो बिड करते हैं. तो 1 हाई, 2 हाई और 2 लो. तब कैसे स्कोरिंग होगी? Then the players bidding high gain 2 points each, bidding low lose 2 points each. तो हाई वालों को +2 मिला, लो वालों को -2 मिला. नेट इफेक्ट मेरा फिर भी 0 ही रहा. ओके. इफ 1 player bids high and 3 bid low, so 1 player bids high and 3 players bid low, तब क्या होगा? If 1 player bids high, 3 bid low, then the player bidding high gains 3 points, bidding low loses 1 point each. तो इसको तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे हाई बिड करने वाले को, बाकी तीनों को -1 -1 -1. मेरा नेट स्कोर में चेंज विल बी 0. All 4 bid low, then all 4 gain 1 point each. और अगर चारों ने ही लो 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 बिड किया तो चारों को ही 1 1 1 1 मिलेगा, यानी कि मेरा नेट स्कोर का गेन हो जाएगा 4. So I'll especially ask the people who joined us a little bit late, Shivam, Tejas, Anjan, Purva, are you guys okay with the scoring system? मैंने अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया है. सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू गाइस इज, इफ यू आर ओके विद द स्कोरिंग सिस्टम, गिव मी अ थम्स अप. और अगर स्कोरिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आया है, इफ देयर इज एनी पार्ट ऑफ द स्कोरिंग दैट यू आर नॉट ओके विद, प्लीज यूज द चैट विंडो टू आस्क दैट हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड दिस स्कोर और दैट स्कोर, बिकॉज़ द क्वेश्चन इज विल बी बेस्ड ऑन दिस. अगर आपको गेम का स्कोरिंग ही समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो यू विल जस्ट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. इसीलिए आई विल गिव इट अ लिटिल मोर टाइम एंड आई विल जस्ट रिपीट द इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ इट वंस अगेन, व्हिच आर, अगर ऑल 4 बिड हाई, चारों का 1 पॉइंट जाएगा, लूज 1 पॉइंट. ऑल 4 हाई पे -1 -1 -1 -1. देन द प्लेयर्स, 3 players bid high, 1 low. That means हाई वालों को 1 पॉइंट मिलेगा और लो वाले को 3 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, 1 1 1 एंड -3. फिर अगला केस, 2 हाई 2 लो, 2 हाई 2 लो. तो हाई वालों को 2 पॉइंट मिलेंगे, लो वालों के 2 पॉइंट जाएंगे. सो +2 +2 -2 -2. 1 हाई 3 लो, 1 हाई 3 लो. देन हाई वाले को 3 पॉइंट, लो वाले का 1 पॉइंट कट गया.
हाई के 3 पॉइंट, लो वाले के एक एक पॉइंट कट गए. ऑल 4 बिड लो, देन ऑल 4 गेन 1 पॉइंट ईच. ऑल 4 के लो तो ऑल 4 को 1 पॉइंट मिला. इस केसेस में मैंने एक काम और किया है, मैंने नेट गेन निकाल लिया है. सबका -1 -4, 3 + 1 1 -3 0, +2 +2 -2 -2 नेट 0, 3 -1 -1 -1 0, 1 1 1 1 पे 4. ये मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें आ गया. अब मैं देखता हूं कि एक्चुअली ये तो अभी तक मैंने गेम समझा है, ये सॉल्व थोड़ी किया है, ये बताया थोड़ी है कि इस पर्टिकुलर गेम में क्या होगा क्या नहीं होगा. दैट इज द पार्ट कि इस पर्टिकुलर गेम में अभी कौन लोग हैं, 4 लोग खेल रहे हैं, ABCD. ये चारों किस हिसाब से खेलेंगे, इन चारों के किस हिसाब से आंसर आएंगे, वो इंफॉर्मेशन अब हम देखेंगे. एट द एंड ऑफ 3 राउंड्स Arun had scored 6 points, Deepak had 2, Bankim and Charu had -2 each. तो 3 राउंड्स के बाद में, so first 3 rounds, that is the data that I am trying to analyze. First 3 राउंड्स के बाद में मुझे गिवन है, अरुण के हैं 6 पॉइंट्स, दीपक के हैं 2 पॉइंट्स, बंकिम एंड चारू के हैं -2 और चारू के हैं -2, which means what is my total? My total is 6 into 8 -2 -2, my total is +4. 3 राउंड खेले हैं मैंने और मेरा टोटल है +4. मेरे को यह पता है कि मेरा एक राउंड में या तो 4 आएगा या 0 आएगा. तो अब मैं अपने टोटल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, हाउ कैन आई गेट अ टोटल ऑफ 4? वन आइडिया इज 4 4 एंड -4. ये मेरे 3 राउंड्स के अंदर स्कोरिंग रही होगी, 4 4 और -4. तब मेरा 8 आ सकता, तब मेरा 4 आ सकता है, या एक राउंड में 4 आ गया और 2 में 0 आ गया. यही 2 पॉसिबिलिटी हैं टोटल 4 लेके आने की. अब अगर मान लो मैं 2 बार पॉजिटिव +4 करता हूं और 1 बार -4 करता हूं, तब क्या होता? 2 बार +4 करता तो मेरा 1 1 1 1 और 1 1 1 1 और -1 -1 -1 -1 और सबका फिर 1 1 1 1 में एंड होता. एंड इन दैट केस ए को तो 6 नंबर कहीं से आ ही नहीं सकते हैं, सबके ही 1 1 1 1 आते. तो ये वाला केस तो नहीं है. सो दिस मच आई कैन असर्टेन कि ये जो मेरा 4 का टोटल आया है, ये एक राउंड में तो +4 हुआ है और बाकी 2 राउंड में 0 0 हुआ है. दैट मच आई नाउ नो फॉर श्योर. दैट इज द ओनली वे आई कैन गेट अ टोटल ऑफ 4 0 0. अब टोटल +4 आया है, यानी कि 1 1 1 1. एक बार तो ये हुआ है, यानी कि एक बार तो सबने लो बिड किया ही है. अब एक बार अगर सबने लो बिड किया ही है, जिससे इन सबका 1 1 1 1 हुआ है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन गेट इट एज 4. अब बाकी 2 राउंड में क्या हुआ होगा? बाकी 2 राउंड में क्या हुआ होगा कि ये भाई साहब तो -2 पे पहुंच गए, ये भाई साहब भी -2 पे पहुंच गए, ये भाई साहब +1 और इनको मिले हैं +5. तो 2 राउंड में 5 नंबर मुझे लाने हैं. मैं कैसे लाऊं? ये चार्ट देखो, ये टेबल देखो. 2 राउंड में मुझे 5 नंबर लेके आने हैं. हाउ कैन आई डू दैट? The only way I can do that by getting 5 numbers in 2 rounds is एक बार मैं 3 ले आऊं और एक बार मैं 2 ले आऊं. और कोई तरीका नहीं है 2 राउंड में 5 स्कोर करने का. तो एक बार मैं भाई साहब को 3 पॉइंट दे देता हूं और एक बार मैं भाई साहब को 2 पॉइंट दे देता हूं. तो 3 पॉइंट के लिए क्या करना होगा? 3 पॉइंट के लिए इनको तो हाई करना होगा
और बाकी सबको लो करना होगा। तो उन तीनों का -1 -1 -1 हो गया और इन भाई साहब का हाई हो गया है, तो इनका तो हो गया है जी टोटल 6। ये मुझे पता पड़ गया, मैं बहुत खुश हूं, मेरे को टोटल ए का तो पूरा मिल गया है। अब जो है इसका टोटल है 0, इसका टोटल है 0, इसका टोटल है 0। एंड में मैं क्या चाहता हूं? एंड में मैं चाहता हूं इसका टोटल हो 2, तो इसको यहां पे 2 नंबर मिलने चाहिए। इसका मैं चाहता हूं टोटल हो -2, यानी कि इसको यहां पे -2 मिलना चाहिए। इसका भी मैं चाहता हूं टोटल हो -2, तो इसको भी यहां पे -2 ही देना पड़ेगा। तो 2 2 -2 -2 ये कब होता है? ये होता है हाई हाई लो लो में। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लो हो गया। तो मैंने अपने पहले 3 राउंड्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है। अभी भी इवन नाउ मुझे ये चीज तो पता है कि कैसे स्कोरिंग हुई, बट अगर मैं आपसे पूछूं राउंड 1 कौन सा था, राउंड 2 कौन सा था, राउंड 3 कौन सा था, तो मैं वो आपको नहीं बता सकता हूं। दैट आई कैन नॉट टेल यू। व्हाट आई कैन टेल यू इज कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। I hope you guys are okay with these values on how the distribution has taken place for the games. Siddhant and Sonika, Purva, Anjan, guys who have just joined us, you can use the chat window to tell me if you are okay with this. Please write okay. If there is any part of it, any value in this that you did not understand, तो मुझे बता दो, I will repeat that particular part. क्योंकि आगे जाके फिर वापस इस पे आने में बहुत दिक्कत होगी। ओके, I'll take Purva and Anjan's word for it that they are okay with this distribution. And अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन यूज की है। सेकेंड कंडीशन, at the end of 6 rounds Arun had scored 7, Bankim at this. ओके जी, तो राउंड 4, 5 और 6 इसमें अरुण के अब है 7 पॉइंट, यानी कि इन 3 राउंड्स में अरुण ने कमाया है 1 पॉइंट। भाई एट द एंड अरुण हैज 7, दैट मीन्स इन दिस ही हैज मेड 7 - 6 और 1। बंकिम एंड दीपक एट -1 ईच, तो बंकिम का -1 है, दीपक का -1 है। बंकिम का पहले कितना था? -2 था, तो ये -2 से -1 पे आया है। दैट मीन्स -1 माइनस ऑफ -2, तो इसने इन 3 राउंड्स में 1 पॉइंट कमाया है। ए ने भी 1 पॉइंट कमाया है, बी ने भी 1 पॉइंट कमाया है, सी भी -2 पे था और अब ये -1 पे आया है, तो इसने भी 1 पॉइंट कमाया है। सॉरी डी तो पहले 2 पे था, तो डी का है -3। सी का क्या स्टेटस है जी? सी हैज स्कोर्ड -5, तो सी पहुंच गया है -5 पे। पहले सी था -2 पे, तो सी ने कमाया है -3। लेट मी जस्ट write it slightly more clearly. These are their scores after 5-6 rounds. What I'm doing is I'm comparing it with their earlier scores. 7 - 6 gives me 1. So in this round, A has scored 1. B went from -2 to -1. So -1 minus of -2, which is +1. तो B ने कमाया 1 पॉइंट. C went from -2 to -5.
-5 minus of -2 is -3. So C has made -3 points and D went from 2 to -1. So -1 minus 2, which is -3. तो D ने कमाया है -3. तो मेरा टोटल हुआ है इस केस में कितना? 1 1 -3 -3. तो मेरा टोटल है -4. Now, how can I get a total of -4? Again, there are two ways. 4 minus 4 minus 4, that is one way. Or -4 0 0, that is another way. अब अगर मैं 4 minus 4 करता हूं तो 1 1 1 1 4 के लिए, फिर -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1. So I will end up with -1 -1 -1 -1. ये वाला केस तो नहीं हो रहा है क्योंकि A और B दोनों पॉजिटिव में एंड कर रहे हैं और C और D -3 पे एंड कर रहे हैं. दैट मीन्स ये केस तो नहीं हो रहा है. दैट मीन्स ये केस नहीं हो रहा है. मेरा जो केस हो रहा है वो -4 और 0 0 वाला ही केस हो रहा है. तो अब मैं इसको हटा दूंगा, which means I need a -4 0 and 0. अब मैं -4 करता हूं तो वो मैं कर देता हूं -1 -1 -1 -1. अब मुझे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए ये -1 से +1 पे चला जाए, यानी कि अगले दो राउंड में ये मिलाकर +2 होना चाहिए. अगले दो राउंड में इन भाई साहब को क्या होना चाहिए? इनको भी +2 होना चाहिए. अगले दो राउंड में इनको क्या होना चाहिए? इनको -2 होना चाहिए. और इसको क्या होना चाहिए? इसको भी -2 होना चाहिए. तो अब मैं ये कैसे अकम्प्लिश करूं कि दो लोग को तो 2 का गेन हो. हाउ कैन यू हैव अ गेन ऑफ 2 इन 2 राउंड्स? भाई gain of 2 in 2 rounds can happen. 3 और -1 पे gain of 2 हो जाएगा या 1 और 1 पे हो जाएगा. -2 करना है तो -2 अगर मुझे करना है तो -3 और 1 पे हो जाएगा -2, या -1 और -1 पे हो जाएगा -2. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यार. देयर आर वे टू मेनी पॉसिबिलिटीज. मतलब 3 और -1 में ले सकता हूं, -1 -1 में ले सकता हूं, 1 1 में ले सकता हूं. अच्छा हाँ, बट एक बात और मुझे जो ध्यान रखने वाली है, भाई 3 इसमें लिया, -1 लिया, नहीं कुछ बैठ रहा है इसके अंदर. -1 -1 -1 तो हो गया -4 के लिए. चलो देखते हैं कोई और कंडीशन हो. इससे तो भैया मैं और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, बट मैंने ये इंफॉर्मेशन को लिख के जितना मैं यूज कर सकता था, जितना मैं इसका तेल निकाल सकता था कि मेरे को टोटल -4 चाहिए, वो मैंने निकाल लिया है. बट उसके आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं. आगे की कंडीशंस. दीपक इन थर्ड राउंड was less than his score in the first round but more than his score in the third round. So Deepak in third round was less than his score in the first round. So was less than his score in the first round but more than his score in the second round. यानी कि दीपक का मैक्सिमम जो स्कोर आया है वो फर्स्ट राउंड में आया है. ओके, तो दीपक का मैक्सिमम स्कोर आया है 2, तो वो आया फर्स्ट राउंड में. दैट मींस ये है मेरा फर्स्ट राउंड. उसके बाद आया थर्ड राउंड में, तो ये है मेरा थर्ड राउंड और ये है मेरा सेकेंड राउंड. तो ये है मेरा दीपक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन.
ओके जी। और दीपक के लिए क्या? अब इससे मेरा ये फायदा हो गया, मुझे सबका राउंड्स में कितना कितना स्कोर आया है वो मुझे पता चल गया। फर्स्ट 3 राउंड्स तो मेरे को पूरी फुल क्लैरिटी आ गई है, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में क्या हुआ। इन एग्जैक्टली 2 of the 6 राउंड्स अरुण वॉज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई। तो ओनली प्लेयर हु बिड हाई यहां पे हो रहा है। अब ओनली प्लेयर हु बिड हाई यहां पे हो रहा है, तो ऐसा ही एक बार अरुण साहब को काम यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां पे 3, एंड इफ ही इज द ओनली प्लेयर टू बिड हाई, तो बाकी लोगों ने लो किया होगा। ओके, अब 3 -1 और इनको नेट 1 चाहिए, तो यहां पे मेरा -1 होना चाहिए। -1 और इनको नेट 1 चाहिए, तो यहां पे भाई साहब का 3 होना पड़ेगा। यहां पे -1 इनको टोटल -3 चाहिए, तो यहां पे -1 होना पड़ेगा। -1 तो यहां पे भी -1 होना पड़ेगा। तो अब ये हाई हो गया और ये दोनों मेरे लो हो गए। एक हाई आ गया, बाकी 3 लो आ गए, तो इससे मेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये चारों का -1 कब आता है? जब चारों हाई बिट कर दें। तो इस केस में ये मैंने ABCD को चारों को हाई बिट करवा दिया। तो अब मेरा राउंड 4, 5, 6 की भी पूरी क्लैरिटी आ गई है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि राउंड 4 में क्या हुआ, वो मैं नहीं बता सकता। दैट पार्ट आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि इन तीनों में से कौन सा 4 है, कौन सा 5th है, कौन सा 6th है। भाई जैसे यहां पे तो मैंने पता लगा लिया कि फर्स्ट राउंड ये था, सेकेंड राउंड ये था, थर्ड राउंड ये था। यहां पे तो ऑर्डर मुझे मिल गया बिकॉज ऑफ द फोर्थ स्टेटमेंट, सॉरी बिकॉज ऑफ द थर्ड स्टेटमेंट। बट यहां पे कौन सा 4th है, कौन सा 5th है, कौन सा 6th है, उस बारे में मेरे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट कम से कम स्कोरिंग के तो मुझे पता चल ही गया है कि भाई 3 -1 से 1 आ रहा है, 3 -1 से 1 आ रहा है, -3 -1 -1 -3 -1 -1 ये आ रहा है। Anjan and Purva, are you guys okay? Anjan, Purva and others who are listening, I hope you are okay with the distribution of the first 3 and the last 3 rounds. Okay. Good to see that. अब अगर आप इससे ओके हो तब तो हमको कुछ और करना ही नहीं है. All that I need to do now is just check the questions. 6 क्वेश्चन है इस पे. What were the bids by A, B, C, D in the first round? In the first round, A का हाई है, B और C का लो है, D का हाई है. ओके, सो A और D का हाई है, B और C का लो है. So this is happening in the fourth option. In how many rounds did Arun bid high? अरुण ने 1, 2, 3, 4 in 4 rounds. एक, दो, 1 and 2 and 2 here. Okay. In how many rounds did Bankim bid low? बंकिम का पहले तीनों में तो लो बिड किया भाई साहब ने, और यहां पे एक में लो बिड किया. सो दिस इज ऑल्सो 4 राउंड्स. विच राउंड्स आर दीज? ये जो 4 राउंड्स थे अरुण के हाई वाले, वो थे 1, 2 and 2 out of 4, 5 and 6. बंकिम के जो थे वो थे 1, 2, 3 and 4, 5, 6 में से कोई सा भी 1 out of 4, 5 and 6. In how many rounds did 4 players make identical bids? यानी कि सब हाई या सब लो. फर्स्ट राउंड में तो हाई हाई लो लो है, हाई लो 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 है. थर्ड राउंड में सबका सेम है,
एंड यहां पे हाई 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 हाई, इसमें भी सब सेम है. सो थर्ड एंड 1 out of 4, 5 and 6. So in 2 rounds players made identical bids. Third round and 1 out of 4, 5, 6. In how many rounds did Deepak gain exactly 1 point? तो अब दीपक को 1 पॉइंट मिलना चाहिए, यहां पे मिल रहा है. सो इन द थर्ड राउंड, और तो भाई साहब को कहीं मिल ही नहीं रहा है, बाकी तो सब जगह -1 -1 -1 है. So that's it. In 1 round it is happening, and that 1 round is the third one. In which of the following rounds was Arun definitely the only player to bid high? तो अरुण भाई साहब ने only player to bid high ये कारनामा किया है सेकेंड राउंड में, और एक बार और किया है ओनली प्लेयर टू बिड हाई ये वाला. अब ये कौन सा राउंड है मुझे पता नहीं है, सेकेंड राउंड में और 4th, 5th और 6th में से किसी भी एक राउंड में, मुझे नहीं पता कि कौन सा. सो इन विच वन वॉज अरुण डेफिनेटली द ओनली प्लेयर? इन द सेकेंड राउंड डेफिनेटली अरुण वॉज द ओनली प्लेयर टू बिड हाई. आर यू ओके विद दिस? एक बार टेबल बन जाती है ना तो फिर क्वेश्चन में उतनी दिक्कत नहीं आती है. So please do tell me if you have an issue with any question, any problem, any part of the data. I will happily, explain that again. किसी भी पार्ट में अगर आपको दिक्कत है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, please tell me. I will happily explain that again. Got it? Okay, I'll assume you guys are okay with this. This is the second set that we had for today. Let me remind you, we have started giving out 2 full and mock tests every week as a part of our courses, which are available in both our Plus and Iconic subscriptions. If you're not subscribed yet, you can do that and use the coupon code HANDA to get 10% off. As a matter of fact, अगर आप 25th तक सब्सक्राइब करोगे तो कंपनी की तरफ से 10% आपको मिल रहा है, 10% आपको इस कूपन कोड से मिलेगा. तो CAT 22 का कोर्स जो है, you will get that at roughly a 19% discount if you use this particular coupon code. And I think I will wrap up this particular session here. हमारे 5 सेट्स थे. In part 1 I discussed 3 sets. उन 3 में से मैंने 2 को मीडियम में डाला था और 1 को मैंने हार्ड में डाला था. अभी वाले जो 2 सेट्स किए, उन दोनों सेट्स को तो मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा compared to the ones that we did in part 1. So आप लोगों को 2 ही सेट करने होते हैं एग्जाम में, यही 2 सेट कर देते तो आपका काम हो जाता. तो चलो दोस्तों, I will wrap it up here. मेरी एक और क्लास है जीके की जो कि काफी अच्छी और एंटरटेनिंग रहती है, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन. द क्लास जीके क्लास इज एट 7 PM. उसका लिंक मैंने आपके लिए पिन कर दिया है. I hope you guys will join me in for that as well. That's it for today. Please provide positive feedback at the end, and I hope to see you guys at 7 PM. Bye Anjan, bye Purva. Omkar, I'm sorry तुमने just join किया and I'm wrapping up this class. But hopefully you will join me in the 7 PM class where we'll discuss GK for SAT and IIFT. Bye Anjan.